Assalamu alaikum. Hope so everybody will be doing great today, and welcome back with another niche edition of Men's Line. So guys, we are going to look at brand new Insel art by the house of Mac Antoine Barrios, and our nose behind this is no one than other the master perfumer Quentin Bitch. Guys, this house has 4 perfumes: B683, B683 Extract, Guinea and Insel art. As you people know, Mac Antoine Barrios is a famous French couturier, and in 2015 he decided to open his own fragrance brand. So guys, he had met with Quentin Bitch and they started working on it. I really like this house, and guys, this house remembers me of some others like Nosomato and Kilian. गाइस, अगर आप नोसोमाटो और किलियन को लेते हैं तो ये हाउसेस फ्रेगरेंस के साथ एक कॉन्सेप्ट और एक स्टोरी लाइन को लेके चलते हैं, और यही कुछ आपको इस हाउस में भी देखने को मिलता है। यूजुअली कंपनी जब भी कोई फ्रेगरेंस मैन्युफैक्चर करती हैं तो वो परफ्यूमर को हायर करती हैं जो इंटायरली उस फ्रेगरेंस के ऊपर काम करता है। बट गाइस, यहाँ पे आपको दोनों की कोलैबोरेशन और दोनों का वर्क देखने को मिलता है। अगर परफ्यूम के स्ट्रक्चर और फॉर्मुलेशन पे क्विंटन बिच ने काम किया है तो उसकी स्टोरी लाइन और कॉन्सेप्ट के ऊपर गाइस बैरियोस ने काम किया है, तो आपको इनका काम और दोनों की कोलैबोरेशन देखने को मिलती है। गाइस, अगर आप बात करते हैं गिनीमेट की तो आई थिंक 2020 में उसने 2 अवार्ड विन किए, फिफी अवार्ड भी विन किया और आई थिंक फ्रेगरेंस फाउंडेशन अवार्ड भी विन किया। इंसल आर्ट को लेते हैं तो गैस उसके पीछे भी आपको एक स्टोरी और एक कॉन्सेप्ट मिलता है जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मौजूद है। यू कैन गो देयर एंड चेक इट। और हम देखते हैं कि गाइस इंसल आर्ट कैसा है। तो विदाउट एनी वेस्टिंग फर्दर टाइम, लेट्स जंप इनटू इट एंड चेक दिस आउट। Welcome back guys, and it's time for presentation. So guys, on the front you will get the name of the perfume house and concentration, and guys, this doesn't come in cellophane packaging, and there is a seal behind it. Once you break it then it will be gone. और guys, ये कुछ इस तरह से open होता है, and here is the box. The color of the box is blue in the front, और guys इसका जो पैक है वो ब्लैक कलर में है और ये कुछ इस तरह से ओपन होता है। And guys, here is the bottle. और ये लीफलेट है और इसके अंदर जो हाउस की और परफ्यूम्स की इंफॉर्मेशन दी गई है। So guys, here is the bottle और इस पे लिखा हुआ है इंसलाड। और गैस इसकी बॉटल जो है वो प्रीवियस जितने भी इसके जो हैं परफ्यूम्स हैं गैस सेम है, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं है। और जो कलर है जो इसका वो स्लाइट लेमनी है, और बॉटल के ऊपर गैस जो लोगो हुआ है उसका वो बना हुआ है। सो गैस, दिस इज़ द प्रेजेंटेशन। गैस, नोट्स की बात करते हैं। दैन यू विल गेट रूबॉब, वेटिवर, लेदर, सीडर, सैंडलवुड एंड टोंका बीन्स। Guys, रुबाब की फ्रेगरेंस कैसी होती है? I will try to explain. रुबाब is tart, zingy and sharp, but guys, at the same time, it is very refreshing, green and fruity. But unfortunately, like other vegetables and fruits, it cannot be extracted naturally. So the perfumer have to reconstruct its smell with some other accords, or they have the choice between the ready-made formulations or synthetic ingredients like stearyl, acetate, rhubarb, oxyrane, rubopyrene and rubofix by Firmenich company. Anyhow guys, I am going to blast couple of sprays for you guys. As you see, the atomizer is very smooth. So guys, the opening is very intense. You will get high dose of rhubarb and it is just in your face. The rhubarb is beautifully sorted over the bed of vetiver and leather. Here the rhubarb is very tingling guys, it's very piercing and bright. So guys, I think the rhubarb is more on a veggie side as compared to the fruity. So guys, यहीं कहीं पे 10 मिनट के बाद आप पिक करते हैं एक अर्थीनेस को बिकॉज ऑफ द वेटिवर, और यहीं पे कहीं पे आपको एक ड्राइनेस भी फील होती है बिकॉज ऑफ द लेदर। गैस, यहाँ पे जो लेदर यूज़ किया गया है वो बहुत ही सॉफ्ट है, बट आफ्टर 15 to 20 minutes or you can say 25 minutes, guys, you can feel the smoky leather
and this comes from the vetiver. One vetiver combines with leather creates a smokiness. वो लोग जो आप से 1 फीट से 2 फीट के फासले पे खड़े होते हैं वो इसको पिक नहीं कर सकते, बट द पर्सन दैट इज़ स्टैंडिंग वेरी क्लोज टू यू ही कैन पिक द smoky leather guys, or even if you dig your nose in here you can pick that smokiness. But guys इस leather को pick करने के लिए आपके नोज़ को मैच्योर होना चाहिए, अदरवाइज गैस जो नॉर्मल पर्सन है वो जस्ट रुबाब को पिक करता है. गैस 45 to 60 मिनट्स के बाद गैस जो रुबाब है वो टोन डाउन होना शुरू हो जाती है एंड यू कैन से इट विल बिकम द सेंटर ऑफ द फ्रेग्रेंस. फेड आउट होती है और जो वेटिवर और लेदर है गैस ये चले जाते हैं बैक स्टेज पे, और इसका जो की स्टार इंग्रेडिएंट है गैस सैंडलवुड वो पॉप आउट करता है. और गैस यहाँ पे जो सैंडलवुड है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस के तौर पे काम करती है. यू कैन से कि इस फ्रेगरेंस की जो मेन फाउंडेशन है वो सैंडलवुड के ऊपर बेस करती है. सो गैस ऐसा लगता है कि जो सैंडलवुड है इट विल इन्वेलप्स ऑल द इंग्रेडिएंट्स एंड इट क्रिएट अ ब्यूटीफुल बबल सैंड अराउंड योर self. Here the sandalwood is slightly creamy guys and it's rich and exotic. When tonka beans and cedar combines with sandalwood it will create a beautiful and uplifting scent, and that will forms a huge bubble scent guys around yourself. So guys जो overall fragrance है वो बहुत ही कह लें कि यूनिक किस्म की और एक वर्सल फ्रेगरेंस है गाइस. जब ये ड्राई डाउन फेस में जाती है आफ्टर 1 hour इट विल बिकम लिटिल बिट क्रीमी गाइस एंड द सैंडलवुड गिव डेप्थ एंड वार्म टू दिस फ्रेगरेंस. तो वो लोग आप में से जिन्होंने सैंडलवुड ड्रिंक को एक्सपीरियंस किया है गाइस तो थोड़ी सी उससे ये फ्रेगरेंस ड्राई डाउन फेस के अंदर जाके मिलती है गाइस. ओवरऑल बहुत ही अच्छी फ्रेगरेंस है. परफॉर्मेंस की बात करते हैं गाइस देन दिस इज़ अ बीस्ट मोड फ्रेगरेंस. इजीली ये लॉस्ट करती है आपकी स्किन पे 12+ आवर्स, आपकी क्लोज पे ये 24+ आवर्स तक लॉस्ट करती है गाइस, और 2.5 to 3 आवर्स तक ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट करती है. और जो इसका सियाज है वो भी अबव एवरेज है, 4+ आवर्स इसका सियाज है. सो गाइस द परफॉर्मेंस इज इनसेन. वर्सटैलिटी की बात करते हैं गाइस तो इट्स अ वर्सटाइल फ्रेगरेंस. यू कैन इजीली पुल इट आउट इन द ऑफिस शू ड्रेस. आप यू कैन इजीली गो विद दिस वन. सेमी फॉर्मल आपने ड्रेसिंग की है तब भी आप इसको इजीली पहन सकते हैं. गाइस कम्प्लीमेंट फैक्टर की बात करते हैं देन दिस इज़ अ ह्यूज कम्प्लीमेंट गेटर एंड लेडीज़ रिएक्शंस आर पॉजिटिव. लेडीज़ रियली लाइक दिस फ्रेगरेंस. एज ओकेजन की बात करते हैं तो आप इसे किसी भी इवेंट पे पहन सकते हैं, वेडिंग सेरेमनीज़ के ऊपर पहन सकते हैं. एज अगर दोस्तों के साथ आप गेट टुगेदर पे जा सकते हैं तो आप इसको इजीली पहन सकते हैं, बट कीप इट इन योर माइंड दिस इज़ नॉट अ क्लबिंग सेंट. As वेदर की बात करते हैं दिस इज़ प्योर ऑफ विंटर फ्रेगरेंस एंड यू कैन ऑल्सो वियर दिस वन इन फॉल एंड समर. हाई हीट के अंदर मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा गाइस. अगर आप इसको आउटडोर पहनते हैं हाई हीट में तो ये प्रॉपरली प्रोजेक्ट ही नहीं कर पाती. इट विल कम वेरी क्लोज टू योर स्किन. बट आप किसी सूटेबल इन्वायरमेंट में बैठे हों, अगर ऑफिस में कहीं पे हैं जहाँ पे गैस AC है, जहाँ पे कंट्रोल टेम्परेचर इन्वायरमेंट है, दैन यू कैन वियर दिस वन. बट गाइस आप सैंडलवुड को अगर लेते हैं दिस इज़ अ वेरी वर्सटाइल इंग्रेडिएंट. और किसी भी फ्रेगरेंस के अंदर जब ये बेस में यूज़ किया जाता है और ऐसा मेन इंग्रेडिएंट यूज़ किया जाता है तो तब गाइस ये फ्रेगरेंस को एक वार्म देता है, एक डेप्थ देता है. तो वो उसको आप फिर विंटर के लिए ही पहन सकते हैं. वो प्योर विंटर के लिए कैसे कहें कि फ्रेगरेंस क्रिएट की जाती है. सो गाइस ऑन टू माई फाइनल थाट्स. सो गाइस बाय करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए. फर्स्ट गाइस इसकी जो ओपनिंग है वो बहुत ही ज़्यादा मैस्कुलिन है, बट जब ये ड्राई डाउन फेस में जाती है इट विल बिकम यूनिसेक्स. तो गाइस ये एक ऐसी फ्रेगरेंस है जो मेल और फीमेल दोनों पे शाइन करती है. बट दोज पीपल्स हु वांट समथिंग वेरी असर्टिव गाइस, समथिंग वेरी अथॉरिटेटिव और बॉसी टाइप, और यू कैन से एन अल्फा मेल गाइस, तो तब मैं उनको ये फ्रेगरेंस कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा. गाइस दिस इज़ लीनियर एंड कॉम्प्लेक्स एट द सेम टाइम. इसको आप इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते. गैस वो लोग जो गिनी मेड से बहुत ज़्यादा फैसिनेट है, उनके माइंड में है कि उस तरह की फ्रेगरेंस होगी, तो ये गैस उस तरह की नहीं है. इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रेगरेंस एंड इंटायरली जो दोनों फ्रेगरेंस हैं वो एक डिफरेंट डायरेक्शन में जाती हैं. जो गिनी मेड गैस वो ईजिली क्या लें कि वो एक कम्प्लीमेंट गेटर है, पसंद आती है. बट ये फ्रेगरेंस गैस थोड़ी सी पोलराइजिंग है, कुछ लोगों को पसंद आती है, कुछ को नहीं पसंद आती. तो मैं आपको हाईली यही रिकमेंड करूँगा कि इसको ब्लाइंड बाय मत करें. Try it guys before you buy it. Again I said try it before you buy it. So guys this is all from my side. What do you think?
और इस हाउस की आपने कौन सी फ्रेग्रेंस यूज़ की है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।